کہ اللہ پاک جل شانہ کو ان کا وسیلہ دیا جائے اور ان کو اعمال کا ہدیہ دیا جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسئلے حل ہوتے ہیں، مشکلیں دور ہوتی ہیں۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسئلے حل ہوتے ہیں اور مشکلیں دور ہوتی ہیں ان کے وسیلے سے، ان کے وسیلے سے۔ خود سوچیں کہ ان صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کیا ہوگی اور ان کا وسیلہ مانگنا اس کی بارگاہ میں کتنا طاقتور ہے۔ جب آدم علیہ السلام جنت میں آئے تو انہوں نے جنت کے اوپر ایک دیکھا، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جب آدم علیہ السلام سے وہ خطا ہوئی اور جس کی وجہ سے ان کو جنت سے زمین پہ بھیجا گیا تو فرمایا یا اللہ اس محمد کے وسیلے سے مجھ سے راضی ہو جا۔ تو فرمایا آدم تم کیسے جانتے ہو؟ فرمایا کہ میں نے جب سب سے پہلے آنکھ کھولی تھی تو میں نے جنت کے اوپر لکھا ہوا دیکھا تھا۔ آج بھی غلامان مصطفیٰ جن کی نسبت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ان کی نسبتوں سے آج بھی دعائیں مانگی جائیں، فریادیں کی جائیں، درخواستیں کی جائیں تو ان کی نسبت سے آج بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ وظیفہ جو ہم پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، فرمایا یہ جو مومنین مومنات ہیں یہ صحابہ آل بیت ہیں، مسلمین مسلمات ہیں، یہ امت کے سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ان کا نام لے کے، ان کی نسبتیں لے کے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہمیشہ جب بھی یہ وظیفہ پڑھا گیا 27 دفعہ دعائیں قبول، سوچیں 27,000 27 لاکھ دفعہ پڑھا جائے اور گڑ گڑا کے پڑھا جائے تو کیسے قبول نہ ہو، اور دعائیں کیسے قبول نہ ہوں، فریادیں کیسے پوری نہ ہوں، رحمتیں کیسے متوجہ نہ ہوں، کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے؟ اور یہ صدیوں سے آزمودہ عمل ہے، صدیوں سے آزمودہ عمل ہے اور صدیوں سے آزمودہ عمل ہے۔ دعائیں کرنا، شیخ ابن عربی کا شجرہ پڑھا، اخلاص پڑھی سورت، ان کو ہدیہ دیا، ان کے وسیلے سے دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی۔ مولا مجھے معاف کر دے، والدیہ میرے والدین میرے بڑوں کو معاف کر دے، وللمؤمنین والمؤمنات، فرمایا مومنین مومنات سے آل رسول اصحاب رسول ہیں، ان ہستیوں کے تذکرے کے بغیر ہمارا نہ دین مکمل ہے، نہ سانسیں مکمل ہیں، نہ نمازیں مکمل ہیں، نہ تسبیحاں مکمل ہیں، نہ ہمارا نظام مکمل ہے۔ ان ہستیوں کے بغیر آل رسول اور اصحاب رسول۔ آپ محسوس کریں، آپ ہر نماز کی التحیات میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد پڑھتے ہیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا یہ درود تو نامکمل ہے، میں نے کہا نماز تو اس کے بغیر ہوتی نہیں ہے۔ آپ نماز کی التحیات میں درود ابراہیمی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ دو روایات ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ بھی ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ان ہستیوں کے بغیر تو ہماری نمازیں مکمل نہیں ہیں۔ ان ہستیوں کے وسیلے، ان کس وسیلے سے اپنی دعائیں، حاجات، طلب، تڑپ، جذبے، ان ہستیوں کے وسیلوں سے، ان ہستیوں کے وسیلے سے مانگنا، طلب کرنا، ملتا ہے، ملتا ہے اور پایا جاتا ہے۔ دنیا نے پایا، رواج ختم ہو گیا۔ کوئی دیوانہ ہوتا وہ جنتی نقش کو عام کر دیتا، کوئی دیوانہ ہوتا یہ چھوٹی اور امت کے دکھ ٹلوا دیتا اور امت کے داغ دھل جاتے اور امت کے زخم ٹھنڈے ہو جاتے اور ان پہ مرہم آ جاتی۔ کون دیوانہ ہے؟ یہ اعزاز اللہ نے تسبیح خانے کی نسبت کو دیا ہے۔ میں بیٹھ کے گڑ گڑائیں گے، بھکاری بنیں گے، محتاج بنیں گے، سائل بنیں گے اور دعائیں قبول ہو جائیں گے، اور دعائیں قبول ہو جائیں گے، اور دعائیں، یقین ہے، یقین ہے۔ سوچیں اتنا بڑا مجمع ان ہستیوں کو بیٹھ کے اعمال کا ہدیہ دے، پھر اتنا بڑا مجمع بیٹھ کے گڑ گڑا کے اللہم اغفر لی والا وظیفہ پڑھے، ڈوب کے پڑھے، ٹوٹ کے پڑھے، رو کے پڑھے، گڑ گڑا کے پڑھے، آنسو بہا کے پڑھے، اللہ کے سامنے کیا کیفیت ہے بتاؤں؟ میرے پاس تو لفظ ہی نہیں ہے، علم بھی تھوڑا اور عمل بھی تھوڑا، کچھ بھی نہیں۔ پر یاد رکھیے گا مجمع کے دل کی کیفیتیں، درد کی کیفیتیں، تڑپ کی کیفیتیں، طلب کی کیفیتیں عرش الہی کے نظام کو متوجہ کر دیتی ہیں۔
अर्श इलाही के निजाम को मुतवज्जे कर देती हैं। हाँ हाँ, तलब की कैफियतें, तड़प की कैफियत अल्लाह के अर्श के निजाम को मुतवज्जे करती हैं। अर्श मुतवज्जे होता है, अर्श मुतवज्जे होता है, और अर्श का निजाम मुतवज्जे होता है, अर्श इलाही का निजाम मुतवज्जे होता है कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू को उनका वसीला दिया जाए और उनको अमाल का हदिया दिया जाए तो दुआएं कबूल होती हैं, मसले हल होते हैं, मुश्किलें दूर होती हैं। दुआएं कबूल होती हैं, मसले हल होते हैं और मुश्किलें दूर होती हैं उनके वसीले से, उनके वसीले से। खुद सोचें कि उन सहाबा और अहले बैत की अजमत क्या होगी और उनका वसीला मांगना उसकी बारगाह में कितना ताकतवर है। जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में आए तो उन्होंने जन्नत के ऊपर एक देखा, लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जब आदम अलैहिस्सलाम से वो खता हुई और जिसकी वजह से उनको जन्नत से जमीन पे भेजा गया, तो फरमाया या अल्लाह उस मोहम्मद के वसीले से मुझसे राजी हो जा। तो फरमाया आदम तुम कैसे जानते हो? फरमाया कि मैंने जब सबसे पहले आंख खोली थी तो मैंने जन्नत के ऊपर लिखा हुआ देखा था। आज भी गुलामान मुस्तफ़ा जिनकी निस्बत हजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ है, उनकी निस्बतों से आज भी दुआएं मांगी जाएं, फरियादें की जाएं, दरखास्तें की जाएं, तो उनकी निस्बत से आज भी दुआएं कबूल होती हैं। ये वजीफा जो हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, फरमाया ये जो मोमिनीन मोमिनात हैं ये सहाबा आले बैत हैं। मुस्लिमीन मुस्लिमात हैं ये उम्मत के सारे कलमा पढ़ने वाले हैं। इनका नाम लेके, इनकी निस्बतें लेके अल्लाह की बारगाह में जब दुआ मांगी जाती है तो वो दुआएं कबूल होती हैं। हमेशा जब भी ये वजीफा पढ़ा गया 27 दफा दुआएं कबूल। सोचें 27,000 27 लाख दफा पढ़ा जाए और गिड़गिड़ा के पढ़ा जाए तो कैसे कबूल ना हो, और दुआएं कैसे कबूल ना हो, फरियादें कैसे पूरी ना हो, रहमतें कैसे मुतवज्जे ना हो। कैसे मुमकिन है, कैसे मुमकिन है? और ये सदियों से आजमूदा अमल है, सदियों से आजमूदा अमल है और सदियों से आजमूदा अमल है। दुआएं करना, शेख इब्न अरबी का शजरा पढ़ा, इखलास पढ़ी सूरत, उनको हदिया दिया, उनके वसीले से दुआ मांगी, दुआ कबूल हो गई। शेख इब्न अरबी जिनके वसीले से इब्न अरबी बने थे, वो ये हस्तियां थीं जिनके नाम आज हम पढ़ने वाले हैं और जिनके नामों को हदिया देने वाले हैं और जिनके नामों से अल्लाह से मदद, अल्लाह से रहमत, अल्लाह से बरकत मांगने वाले हैं। ये वो हस्तियां हैं। शेख ने लिखा किताब में लिखा है कि एक साहब मछली लेके आ रहे थे, रास्ते में एक जवान मजदूर मिला, बाबा जी मछली मैं उठा के घर पहुंचा दूं। कहा कितने पैसे लोगे? चाहे जो जी में आए दे दीजिएगा। रास्ते में नमाज का वक्त हुआ, अजान हुई, उसने मछली रखी, कहा अगर आप जाएं तो ले जाएं, मैं नमाज पढ़ूंगा। इन्होंने कहा मैं भी नमाज पढ़ लूं। नमाज के बाद मछली उठा के वो घर ले गया तो अपनी बीवी को जाके कहा ऐसे ऐसे नेक साले जवान है, और उसको मुझे मुतासिर हुआ, उसने नमाज नहीं छोड़ी, उसकी खूबियां बयान की। तो बीवी कहने लगी हम मछली पकाएंगे तो उससे कहें वो भी मछली खा के चला जाए। तो इन्होंने कहा, तो उसने कहा मेरा रोज़ा है। तो कहा कि आप ऐसा करो फिर रोज़ा हमारे पास इफ्तार कर लो। तो जवान मान गया। इन्होंने उसे इलादा जगह दे दी रहने के लिए, शाम को उसको खाना दिया, उसने रोज़ा इफ्तार किया और सुबह पहले चला गया। लेकिन एक अजीब बात देखी कि उनकी गली में, उनके वहीं एक अपाहज लूली लंगड़ी औरत थी, वो बिल्कुल सेहतमंद और ठीक ठाक थी। तो पूछा तू कैसे ठीक हो गई, तुझे कैसे राहत और तंदुरुस्ती मिल गई, तू कैसे ठीक हो गई? तो वो कहने लगी आपके यहाँ जो जवान आया था मैंने अल्लाह से उसके वसीले से दुआ मांगी थी और उसके वसीले की बरकत से मेरी दुआ कबूल हुई और मैं सेहतयाब हो गई। उस जवान ने किन से फैज पाया था? इन बदरी सहाबा से फैज पाया था, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अल्लाह ये मुट्ठी भर हैं मेरे पास, मुट्ठी भर हैं, अगर आज ये खत्म हो गए क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ये मुट्ठी भर हैं सहाबा, अहले बैत, ये मुट्ठी भर हैं। इनकी बरकत से वो वली बना, वो जवान इन हस्तियों की बरकत से वली बना और उसके वसीले से दुआ मांगी तो अपहज औरत ठीक हो गई। इनकी बरकत से वली बना था, इन हस्तियों के नाम की बरकत से वली बना था।
इन हस्तियों के नाम की बरकत से। ये मदीने वाले की इनके साथ निस्बत थी, इनकी कमली वाले के साथ निस्बत थी। ये यारे गार भी हैं, यारे मजार भी हैं, ये कदम कदम के साथी हैं, इनके साथ निस्बत थी। आज भी अल्लाह को इनका वास्ता दिया जाए तो अल्लाह की बारगाह में कबूलियत होती है, अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता है, आया अजाब टल जाता है, आई बलाएं टल जाती हैं, आई मुसीबतें खत्म हो जाती हैं, फतह बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं, अताओं और शफकत और रहमतें मुतवज्जे हो जाती हैं, अताएं शफकत और बरकतें मुतवज्जे हो जाती हैं। आज भी इनका वसीला अल्लाह को दिया जाए। ये वो लोग हैं जिनकी बरकत से आफात बलाएं टली हैं, जिनकी बरकत से रिस्क के दरवाजे, वुसअत के दरवाजे खुलते हैं। अगर इसको हदीस से सुनना है तो फिर वो हदीस फिर दोहराऊंगा, और मैं जो ये दुआ पढ़ेगा अल्लाह मगफिरली वाली वाली दैया वाली 27 दफा पढ़ लेगा तो अल्लाह उसको मुस्तजाब दावत यानी उसकी दुआएं कबूल होती हैं। और अगली फजीलत और सुने, और मैं अल्लाह इसके जरिए से मखलूक को रिस्क देता है। ये तो आम आदमी है उम्मत का, जो क्यामत तक का मेरे कमली वाले का उम्मती है, और वो ये 27 दफा पढ़ ले और पढ़ने का मामूल बना ले। एक वक्त आता है अल्लाह के यहाँ इसका कुर्ब, इसका कमाल, अल्लाह के यहाँ इसकी मोहब्बत इतनी हो जाती है, मेरा अल्लाह कहता है कि इसके जरिए से मैं मखलूक को रिस्क देता हूं। तो सोचो, जो मेरे सहाबा और मेरे कमली वाले की जमात थी, जो हर वक्त जिन्होंने दीदार किया, हुजूर का साथ दिया, हुजूर की खातिर घर लुटाया, जख्म लिए, कुर्बान हुए, बच्चे ज़बह करवाए, उनकी अल्लाह के यहाँ क्या मकाम, उनका अल्लाह के यहाँ क्या मर्तबा होगा। और उनका वसीला जब दिया जाएगा तो दुआओं की कबूलियत में कोई शक हो नहीं सकता, शक नहीं हो सकता। सदियों से यह अमल आजमुदा है, सदियों से यह अमल आजमुदा है, और जिन्होंने भी किया हमेशा कामयाबियां पाई हैं, कामयाबियां पाई हैं। फिर एक और हदीस सुनाता हूं, मुस्तनद हदीस है, या इबादुल्लाह आइनूनी, ए अल्लाह के नेक बंदो मेरी मदद के लिए आओ। मुहद्दिसीन ने लिखा है वो नेक अरवाह हैं, वो फरिश्ते हैं, वो नेक जिन्नात हैं, और अल्लाह की खास मदद है। ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद के लिए आओ। एक जवान मछली नेक जवान के वसीले से लूली लंगड़ी अपाहज औरत ठीक हो जाए। हमारा जो शजरा तैयबा है तस्बीह खाने का, इनमें औलिया सालिहीन को खत्म खाजगान हमारे बड़े बुजुर्ग सारे उनको पढ़ के हदिया करते हैं, उनके वसीले से तो मसले हल हो जाएं। शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी का शजरा, उनके वसीले से मसले हल हो जाएं। सोचें, जिनके वसीले से ये सब कुछ मिला, उनके वसीले से कितना कुछ ना हल होगा। ये सब उनके वसीले से। मैंने आपको हुजूर ने मैंने आपने हुजूर को नहीं देखा, उन्होंने बरह रास्त देखा, उन्होंने जिब्रील देखा, उन्होंने अल्लाह का अमर देखा, उन्होंने कायनात का निज़ाम देखा, उन्होंने हुजूर के हाथ मुबारक से चश्मे देखे, उन्होंने बरकतों के दरवाजे देखे, उन्होंने वही देखी, उन्होंने वही की कैफियत देखी, उन्होंने वही लिखी, उतरती वही को सुना। वो लोग थे जो मेरे हुजूर के करीब थे, उनके वसीले से दुआएं मांगना, उम्मत के लिए, इंसानियत के लिए, सारे आलम के लिए, अपने दुखों और अपनी मुश्किलों और अपनी परेशानियों के लिए उनके वसीले से दुआएं मांगना, उनके वसीले से दुआएं मांगना ये कोई थोड़ी चीज नहीं है, बहुत ताकतवर अमल है। भूल गए, ऐसा करना भूल गए। असल में हुआ ये अमूमी निजाम खत्म हुआ, फिर ये निजाम फिर चंद लोगों तक महदूद रह गया कि कोई मुश्किल आई है, परेशानी आई है, बदरी सहाबा के नाम पढ़े, उनको अमाल का हदिया दें और अल्लाह से दुआ मांगे, और अल्लाह की रहमत से दुआएं कबूल होती हैं। ये अमूमी रिवाज से खत्म हो गया, ये अमूमी निजाम से खत्म हो गया, ये अमूमी कैफियतों से खत्म हो गया। अल्लाह ने तस्बीह खाने को, जैसे मैंने अर्ज किया ना, मैंने जन्नती तावीज़ जब से नेट पे डाला है, इससे पहले भी हमने मैगजीन में, इससे पहले भी नेट पे, अब फिर डाला है, अभी इस महीने जन्नती तावीज़ रिसाले में छप के आ रहा, उसके बाकायदा हवालों के हवाले मेरे एक मुखलिस है उसने जमा किए, वो हवालों के हवाले हमारी टीम ने डाले। उस दिन से मुझे बहुत राहत है। वो जन्नती तावीज़ जो सिर्फ खानदानों तक महदूद था, खानदानों तक महदूद था। बीकानेर के अंदर एक बहुत बड़ी खानकाह, वहां से कहते थे कि इनके खानदान में एक वो तावीज है जो सोने के तश्त में अम्मा आमना को दिया गया था कि आपका एक मुबारक बेटा आ रहा, ये उसके गले में डाल दीजिएगा। जिब्रील लाए थे, कहा वो नक्श इनके पास है।
बस वो लिख के दे देते हैं, मुकद्दर और किस्मत में जिसको मिल जाए। किताबों में और बड़े तस्करे हैं कि बगदाद में एक साहब थे, उनके पास एक नक्श था। हाँ, एक और शहर मुझे जहन में नहीं आ रहा, वहां के बारे में किताबों में आता है, उनके यहां यह नक्श था जन्नती। मैं छोटा था, मैंने पढ़ा, मैं कहा या अल्लाह ये जन्नती नक्श कैसे होगा, हमें भी मिल जाए। और ये जन्नती नक्श कहां से मिलेगा? आखिर इनको भी तो कहीं से मिला था, इनको तो कहीं से मिला था। हाँ, वासित, शहर का नाम याद आया, वासित, ये ईरान। वासित के एक बुजुर्ग थे, उनके नाम के साथ लिखा जाता था वासिती। और वो बुजुर्ग थे, कहा उनके पास जन्नती नक्श है। और आज अल्लाह का फजल है, वो जन्नती नक्श पूरी दुनिया में फैल गया है। मुझे तो चाहिए था मैं अपने पास रखता और लोगों को कहता कि जन्नती नक्श है, वो यहां से मिलेगा। मैं लिख के देता, प्रिंट बना के देता या मोहर बना के देता। इंसानियत के लिए आम कर दिया। मैंने फिर कहूं, अल्लाह मगफिरली, मौला मुझे माफ कर दे, वाले वालिदैया, मेरे वालिदैन, मेरे बड़ों को माफ कर दे, वलिल मोमिनीन वल मोमिनात, फरमाया मोमिनीन मोमिनात से आले रसूल असहाब रसूल हैं। उन हस्तियों के तस्करे के बगैर हमारा ना दीन मुकम्मल है, ना सांसें मुकम्मल हैं, ना नमाजें मुकम्मल हैं, ना तस्बीहां मुकम्मल हैं, ना हमारा निजाम मुकम्मल है। इन हस्तियों के बगैर आले रसूल और असहाब रसूल। आप महसूस करें, आप हर नमाज की अत्तहियात में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद पढ़ते हैं। मुझे एक बंदा कहने लगा ये दरूद तो ना मुकम्मल है। मैंने कहा नमाज तो इसके बगैर होती नहीं है। आप नमाज की अत्तहियात में दरूद इब्राहिमी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। दो रिवायात हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, ये भी ठीक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, ये भी ठीक है। इन हस्तियों के बगैर तो हमारी नमाजें मुकम्मल नहीं है। इन हस्तियों के वसीले, इन किस वसीले से अपनी दुआएं, हाजात, तलब, तड़प, जज्बे, इन हस्तियों के वसीलों से, इन हस्तियों के वसीले से मांगना, तलब करना, मिलता है और पाया जाता है। दुनिया ने पाया, रिवाज खत्म हो गया। कोई दीवाना होता वो जन्नती नक्श को आम कर देता, कोई दीवाना होता ये छोटी इलायची का नक्श जिससे दुनिया को फैज मिला कोई आम कर देता, कोई दीवाना होता 4 दीवानों और मस्तानों और परवानों को जमा करके बदरी सहाबा की निस्बतों से दुआएं मंगवाता और उम्मत के गम टलवा देता और उम्मत के दुख टलवा देता और उम्मत के दाग धुल जाते और उम्मत के जख्म ठंडे हो जाते और उन पे मरहम आ जाती। कौन दीवाना है? ये एजाज अल्लाह ने तस्बीह खाने की निस्बत को दिया है। में बैठ के गिड़गिड़ाएंगे, भिखारी बनेंगे, मोहताज बनेंगे, साइल बनेंगे और दुआएं कबूल हो जाएंगी, और दुआएं कबूल हो जाएंगी, और दुआएं, यकीन है। सोचें, इतना बड़ा मजमा उन हस्तियों को बैठ के अमाल का हदिया दे, फिर इतना बड़ा मजमा बैठ के गिड़गिड़ा के अल्लाहुम्मा मगफिरली वाला वजीफा पढ़े, डूब के पढ़े, टूट के पढ़े, रो के पढ़े, गिड़गिड़ा के पढ़े, आंसू बहा के पढ़े, अल्लाह के सामने क्या कैफियत है बताऊं? मेरे पास तो लफ्ज ही नहीं है। इल्म भी थोड़ा और अमल भी थोड़ा, कुछ भी नहीं। पर याद रखिएगा, मजमे के दिल की कैफियतें, दर्द की कैफियतें, तड़प की कैफियतें, तलब की कैफियतें अर्श इलाही के निजाम को मुतवज्जे कर देती हैं, अर्श इलाही के निजाम को मुतवज्जे कर देती हैं। हाँ, तलब की कैफियतें, तड़प की कैफियत अल्लाह के अर्श के निजाम को मुतवज्जे करती हैं। अर्श मुतवज्जे होता है, अर्श मुतवज्जे होता है और अर्श का निजाम मुतवज्जे होता है, अर्श इलाही का निजाम मुतवज्जे होता है।